आज हम अर्थनैतिक व्यवस्था क्या है उसके बारे में जानेंगे. What is the meaning of an economic system? Look at the word system. So we are talking about the system that governs an economy. हम व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं, जिस व्यवस्था द्वारा जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी अर्थनीति है, वो चल रही है. जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, एक व्यवस्था है जिससे राजनीतिक जो हमारी व्यवस्था है वो चलती है. उसी तरह से हम जब इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि जो ढेर सारे जो हमारे अर्थनैतिक जो कार्य है वो किस तरह से चल रहे हैं, किस व्यवस्था द्वारा चल रहे हैं. सो वी ट्राई टू सी द सिस्टम that governs the various economic activities with regard to production, distribution, consumption, trade and commerce and many other economic activities. पहले हम जब देखना चाहते हैं कि किस तरह से गवर्न होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो किस तरह का है, किस तरह से लिया जाता है. In economics, basically we talk about three different types of economic system: capitalism or free market economy or market economy, socialism or communism, and then mixed economic system. Capitalism laissez-faire policy, जिसमें सरकार की इन्फ्लुएंस इंटरफेरेंस काफ़ी कम होती है. इसको हम बाजार व्यवस्था भी बोलते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था जो बोलते हैं. तो मार्केट द्वारा लिए जाते हैं डिसीजंस. मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दे टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस. वेयर एज इन सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सेंट्रल प्लानिंग बॉडी, नाम अलग हो सकता है, काम की बात बोल रहा हूँ, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो देश की है वो डिसीजन लेती है. राइट. सो इन सोशलिज्म और कम्युनिज्म इज द सेंट्रल प्लानिंग बॉडी दैट टेक्स मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजंस. वेयर एज इन मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, द सिस्टम अलाउज a fine integration of both the market forces as well as the role of central planning body. The marriage between, you can say, capitalism and socialism. We'll discuss about the three economic system, their merits and demerits in future. So when we look at the economic activities, so capitalism or market economy is based on the philosophy of freedom. When we talk about freedom, of course, within the broad wall of the constitution, within the legal framework of the country, nothing illegal can happen, though we talk about freedom. So we know that line, right? Freedom is not unlimited. So here also in economic activities also, when we say capitalism permits freedom, it doesn't mean that it's unlimited freedom. The producer, the consumers, the traders can do anything that they like. No, they have to remain within the broad wall of the legal jurisprudence, legal framework. Whereas socialism or communism is a command-based system. The central planning body takes decisions and executes them. What we see command in the socialism or communism. Remember, socialism or communism is also a political system. In mixed economic system, as I have said, the system allows the coexistence of freedom as well as command. Private sector represents the capitalist system, where the private sector is free to take its economic decisions. Whereas the state government activities, when I say state, means
the country also. In Indian context, we have a federal or semi-federal system. So the national government as well as the state government, when they carry out their activities, it is based on proper planning. The private sector represents the capitalist system. Public sector represents the socialist sector. So both the sectors coexist. Example, we have central universities and also we have private universities. Both coexist. It's possible in a mixed economic system. जो हम मिश्र अर्थनीति की बात बोलते हैं, तो समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्र अर्थनीति की बात बोल रहे हैं. तो पूंजीवाद में बाजार द्वारा सारे डिसीजंस लिए जाते हैं. प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और बाकी एजेंट्स है वो फ्री है अपने डिसीजन लेने में. जब मैं बोल रहा हूँ कि फ्री है तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैन टेक डिसीजंस एज पर देयर इंटरेस्ट. जबकि सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग बॉडी डिसीजन लेती है देश की भलाई के लिए और जो सिटीजन्स हैं उनके भलाई के लिए. और इसीलिए हम बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रॉफिट के लिए काम करती है, जबकि सोशलिस्ट सिस्टम वेलफेयर, कल्याण के लिए काम करती है. और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में दोनों का कम्बिनेशन होता है. मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो कि इंडिया में है और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, उसमें हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं. सो प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक सेक्टर सोशलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं, द यूएस, फ्रांस, यूके, दे फॉलो कैपिटलिस्ट सिस्टम. चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये देश सोशलिज्म को फॉलो करते हैं. इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश मिक्स इकोनॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं. यहाँ हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, जब हम कैपिटलिज्म या सोशलिज्म या कम्युनिज्म की बात करते हैं, प्योर फॉर्म में हमें ये कहीं भी आज के दिन में दिखाई नहीं देता. मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम हमें वर्ल्ड वाइड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जबकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिला अपने कॉलोनियल मास्टर से, तो ये सारे देश जब अपनी डेवलपमेंट जर्नी शुरू की तो उन्होंने दोनों सिस्टम को अच्छी तरह से देखा और कोशिश की कि दोनों सिस्टम के जो अच्छे गुण हैं उनको समाहित करते हुए एक नया सिस्टम बनाया जाए ताकि जो तरक्की है वो जल्दी हो सके. सो मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज दैट गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, they have adopted mixed economic system so as to combine the best of both capitalism and socialism and to initiate rapid economic development